Okay, dear students, good afternoon to all of you. Today I am recording this video for the demonstration of the experiment number 1 in your experiment list. And what is the experiment number 1? That is about the flywheel. So I am reading the object over here, okay, and you can correlate this video with the experiment manual of flywheel, and then you can understand the things properly. The object of the experiment of flywheel is that to determine the moment of inertia of a flywheel about its own axis of rotation. Okay, and what apparatus you can use in this experiment? The given flywheel. Okay, the flywheel. So here the flywheel is written over here. Now I am showing where is the flywheel. Flywheel is hanging at the wall. Okay, this is the flywheel. Okay, and it can rotate in this way. Okay, and this is the flywheel. Now set of weights. Okay, so you will have three set of weights here. Only 50 gram and 100 gram are mentioned. You will have three set of weight. The 50 gram, this is the weight, you can see that this is the weight. Okay, and the thread is tagging over here. Okay, this is the weight. Okay, what you have to do with this weight, that I will tell you as the video will progress further. Okay, so you will have three set of weights. One is the 50 gram, another one is the 100 gram, and one more is there, that is 150 gram. Okay, then next is what? The thread is over here, which is already tagged in the weight. Okay, vernier calipers. So where is the vernier calipers? I am showing you, just wait for that. ओके तो आपको धागा दिखा दिया मैंने, ये आपका थ्रेड है, ठीक है। ये आपका थ्रेड है, इसमें जो वेट बंधा हुआ है। इसके बाद में ये आपका वर्नियर कैलिपर्स है, जो नेक्स्ट लिखा हुआ है वर्नियर कैलिपर्स लिखा हुआ है। वर्नियर कैलिपर्स का हमें जो है वो लिस्ट काउंट की ज़रूरत होती है, उसके लिए मैं एक वीडियो छोटा सा बना के और वो भी अपलोड करूँगा। तो समटाइम्स यू विल नीड वर्नियर कैलिपर्स इन सम एक्सपेरिमेंट टू मेजर द थिंग्स, एंड समटाइम्स यू विल नीड द स्क्रू गेज in some of the experiment to measure the things. Okay, so for the least count of vernier calipers and for the least count of screw gauge, I will record the video individually and I will share with you all. Okay, to all of the students, so don't worry for that. And a stopwatch. Where is the stopwatch and what you have to do with this with the stopwatch? This is the stopwatch. Okay, so what actually you have to do, you have to tag this thread with the axle of the flywheel. Okay, and then how many rounds of the thread will be taken? The round should be 12, and this number 12 will be fixed for each and every weight. I mean to say that for 50 gram you will take 12 rounds of this thread. Then for 100 gram you will have to take the 12 rounds of this thread. Then for 150 gram also you will have to take the 12 rounds of this thread. And how this thread will be wrapped over the axle of the flywheel, that I am showing you over here. Okay, so that I am showing you over here. इस तरफ आ जाओ, सामने आ रहा। In this way you can shape, you can wrap. तो इस पर भी चल रही है on. You can wrap the thread in this way. I am showing you. Okay, this small point you are showing, थोड़ा सा करीब लाओ, zoom करो उसको. This small point where my finger is put over here. Okay, this is known as peg. This is known as peg. इसी में हम जो है इस धागे को इस तरह से बांध देंगे और उसके बाद में जो है हम क्या करेंगे, इसको राउंड इसको जो है टर्न करते जाएंगे, ठीक है ना। ओके, इन दिस वे। ओके, तो दिस इज योर वन राउंड। तो ये पेग जो है, इस पेग को हम आप लोगों ने पढ़ते रहिए, कोई सवाल पूछना हो तो पूछ लीजिए। So this is the way to wrap the thread on the axle of the flywheel. In this way we can wrap this. Now so this is the second round. Okay, now second round is complete, then it will be the third round. Okay, the third round is complete, and in this way we will make 12 rounds of this thread. Okay, so this is your fourth round, and the distance between each round of the thread should be kept equal to each other. Okay,
So in this way, okay. Now this is your 5th round, then this is your 6th round, then this is your 7th round, and in this way you will make 12 rounds, okay, on the axle of the flywheel with this thread, okay. So I should count. I am counting the round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, okay. One more round is there, okay. Now this is the 12th round, okay. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 rounds are completed for the weight of the 50 gram. This weight having the value of 50 gram, okay. Now this has the value of 100 gram, okay. So the 100 gram weight is tagged with the thread, and then how the thread will be wrapped over here on the axle of the flywheel, that I told you, okay. Now I will allow the weight to fall. And when the weight will be fallen on the earth, and this thread will be detached from this axle of the flywheel, when the weight will be fallen completely on the earth and on the floor, and then the thread will be detached completely from the axle of the flywheel, then what will happen, okay? Then you will have to count the rotations made by the flywheel, and corresponding to all the rotation you will also have to count the time in the stopwatch, okay. So I'm allowing the weight to fall, okay, in this way, okay. In this way, okay. Now I am also showing you the stopwatch over here, okay. And as the thread will be detached from the axle of the flywheel, at that very moment I will on the switch stopwatch, okay. Now the stopwatch is on, okay, and corresponding to the total number of rotations made by the flywheel, we will count the time in seconds in the stopwatch, and when the flywheel will be completely stopped, when the rotations in the flywheel will be completely stopped, at that very moment, at that instant of time, we will switch off our stopwatch, and we will count the time in seconds and number of rotations done by the flywheel, and we will note down those all things in the observation table. So what you have to note down in your observation table? You have to note down in your observation table the number of turns made by the thread on the axle of the flywheel, that will be fixed for each and every weight, and that will be kept 12. तो 12 नंबर ऑफ टर्न्स जो होंगे वो थ्रेड के होंगे, जो मैंने थ्रेड अभी आपको जो है वो उस पर रैप करके दिखाया था एक्सेल ऑफ द व्हील पे, ठीक है ना. तो वो तो फिक्स रहेगा तीनों वेट के लिए, मतलब 50 ग्राम के लिए, 100 ग्राम के लिए और 150 के लिए, तीनों के लिए वो आपका जो नंबर ऑफ टर्न्स N1 होंगे वो फिक्स रहेंगे. उसके बाद में ये जो रोटेशन अभी हो रहे हैं फ्लाई व्हील के, ये आपके जो है वैरी करते रहेंगे. ये एवरी टाइम दिस नंबर ऑफ रोटेशन विल वैरी एवरी टाइम, ओके. तो हमें एक वेट के लिए 2 सेट बनाने हैं, 2 सेट. जैसे कि हमने 50 ग्राम के लिए, 100 ग्राम के लिए ये काम किया, ये परफॉर्म कर रहे हैं हम. फिर से हम इसी चीज़ को दोहराएंगे, फिर से हम इस चीज़ को एक बार और दोहराएंगे, ठीक है ना, 100 ग्राम के लिए. तो मतलब फॉर एवरी वेट, करस्पॉन्डिंग टू एवरी वेट, यू विल रिपीट द रीडिंग ट्वाइस, ओके. आप 2 बार जो है रीडिंग लोगे, जो है नंबर ऑफ टर्न्स जो N2 हैं, ये जो आपकी घूम रहा है फ्लाई व्हील, ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है ये N2 कहलाएंगे, और आपको ऑब्जर्वेशन टेबल में N2 वाले कॉलम में इनको नोट करना होगा, ठीक है ना. तो ये N2 की रीडिंग आपको जो है फॉर एवरी वेट 2 बार लेनी है. यू हैव टू टेक द रीडिंग ऑफ N2, ठीक है, फॉर एवरी वेट 2 टाइम्स, एंड यू हैव टू काउंट द टाइम इन द स्टॉपवॉच इन टर्म्स ऑफ सेकेंड, ओके, 2 times, and then you will note down the time in the observation table in the corresponding column. So in this way your experiment will be done for all the weights, okay. So first you will start with the weight of 50 gram, and you will repeat the reading twice, and again you will start with the weight of 100 gram. Then also you will you will perform the reading for the 100 gram weight 2 times,
and also for 150 gram you will repeat the experiment for 2 times, and every time you will count the number of turns made by the flywheel after the thread will be detached from the axle of the flywheel and the weight will be fallen on the floor. Okay, then every time you will count the number of flywheel, that will be N2, and corresponding time so how much time has been elapsed, okay, to do the particular number of rotations. तो ये नंबर क्या आएगा, ठीक है, ये तो आपने काउंट किया नहीं, ठीक है। 50 ग्राम के लिए कम रोटेशन होंगे, जाहिर सी बात है, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए आप जो है। 50 ग्राम के लिए कम रोटेशन होंगे, ठीक है। 100 ग्राम के लिए रोटेशन नंबर ऑफ रोटेशन डन बाय द फ्लाईव्हील बढ़ जाएंगे। कौन सी रोटेशन, जिसको हम N2 कह रहे हैं। इसी तरह से जब 150 ग्राम का जो है हम वेट सस्पेंड करेंगे, इससे जो है लटकाएंगे एक्सेल के फ्लाईव्हील से, तब जो है नंबर ऑफ रोटेशन और बढ़ जाएंगे। तो तमाम N2 की रीडिंग जो है आपको करस्पॉन्डिंग कॉलम ऑफ द ऑब्जर्वेशन टेबल्स में नोट करती जानी है, और उनके करस्पॉन्डिंग जो भी स्टॉप वॉच में टाइम हो रहा है वो भी नोट करते जाना है। तो देखिए अभी तक आपका ये फ्लाईव्हील रोटेट कर रहा है और स्टॉप वॉच में आपका जो है टाइम चल रहा है। आप देख सकते हो, थोड़ा सा मैं करीब से दिखा दूँ आपको, ये देखिए स्टॉप वॉच में टाइम आपका चल रहा है, और इस तरह से आप जो है आप स्टॉप वॉच को फिर से बंद करना है। तो कब ऑफ करोगे, कब बंद करोगे, जब ये फ्लाईव्हील आपका कंप्लीटली जो है वो रोटेट करना बंद कर देगा। अब देखो धीरे धीरे इसके रोटेशन जो है वो अभी भी देखिए रोटेशंस हो रहे हैं। तो रोटेशंस के लिए जो रेफरेंस पॉइंट है, रोटेशंस कैसे काउंट करेंगे हम, वो ये है, ठीक है। ये आपका जो व्हाइट मार्क बना हुआ है ना इसके सर्कमफ्रेंस ऑफ द फ्लाईव्हील पे, ठीक है ना, इसको हम रेफरेंस बना के और रोटेशंस करेंगे। मतलब ये व्हाइट मार्क जो है आपका जो है वो इस एक्सेल के पैरेलल बनाया गया है। तो जब ये आपके सामने आ जाएगा तो पहला रोटेशन हो जाएगा, फिर दोबारा घूम के सामने आ जाएगा, दूसरा रोटेशन हो जाएगा। इस तरह से आप नंबर ऑफ रोटेशन को काउंट करोगे, जो कि N2 होगा। उसके करस्पॉन्डिंग जो टाइम लगेगा फ्लाईव्हील के स्टॉप होने में, वो आपका टाइम T इन सेकेंड्स आप ऑब्जर्वेशन टेबल में काउंट करोगे, और इस तरह से आप जो है एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करोगे फॉर ऑल द वेट, एंड फॉर एवरी वेट यू विल रिपीट द एक्सपेरिमेंट ट्वाइस। ओके, so this is the way in which you can perform your experiment. This is the demonstration of flywheel. The readings will be sent to you all either in your WhatsApp group or in the Google Classroom. Okay, so thank you for watching the video. Thank you so much. Okay, now you can see in your experiment manual of flywheel that you have two readings over here, two tables, I'm sorry, you have two observation table over here. One is the table is designated as A, that is measurement of diameter of the axle. Okay, so how you can measure the diameter of the axle with the help of this flywheel. Okay, with the help of this flywheel. So how you can measure the diameter of the flywheel, that I will tell you just right now. Okay, and जो अभी हम कर रहे थे एक्सपेरिमेंट, उसमें जो रीडिंग्स आपको नोट करनी है वो यहाँ नोट करनी है। अब देखिए यहाँ पे मास सस्पेंडेड, तो यहाँ 50 ग्राम क्यों 2 बार लिखा, क्योंकि आपको रीडिंग 2 बार करनी है। मतलब एक्सपेरिमेंट एक वेट के लिए 2 बार परफॉर्म करना है। तो 50 ग्राम देन 100 ग्राम देन 150 ग्राम। ओके, फिर N1 आपका फिक्स रहेगा, तो 2 बार 50 है, दोनों के सामने 12 आ जाएगा, 12। फिर 100 के सामने भी 12 आ जाएगा, फिर 150 ग्राम के सामने भी 12 आ जाएगा। फिर आपका H, ये हाइट है हो गया आपकी, तो हाइट कैसे निकालेंगे, इक्वल्स टू 2 पाई R N1। R क्या है, R इज द रेडियस ऑफ द एक्सेल। थोड़ा देर दिखाना, इस एक्सेल की, ये जो एक्सेल इसको मैं पकड़ रहा हूँ अभी, ठीक है ना, इस एक्सेल की रेडियस, तो पहले इसका डायमीटर फाइंड आउट करेंगे, वहां से रेडियस निकल आएगी। तो इस एक्सेल का रेडियस वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो वो आपकी R की वैल्यू, अब यहाँ दिखाओ, अब R की वैल्यू हम इस फॉर्मूला में रख देंगे। पाई की वैल्यू नोन है, N1 आपको नोन है, दैट इज 12। तो यहाँ से H कैलकुलेट हो जाएगा फॉर एवरी वेट, ठीक है। तो 50 ग्राम के लिए H की 2 वैल्यू आएंगी, ठीक है, जैसे N1 की 2 वैल्यू है। इसी तरह 100 ग्राम के लिए H की 2 वैल्यू आएंगी, जैसे कि आपकी N1 की 2 वैल्यू है। इसी तरह से 150 ग्राम के लिए H की 2 वैल्यूज आएंगी, जैसे कि N1 की 2 वैल्यूज आएंगी। उसके बाद में जो आपने टाइम काउंट किया था स्टॉप वॉच में, ठीक है, तो वो टाइम आपका जो है मिनट एंड सेकंड में आ रहा था। स्टॉप वॉच में जो आपको शो होगा, जो दिखेगा, वो मिनट और सेकंड की फॉर्म में दिखेगा। आप जो है टोटल टाइम को कैलकुलेट करके इन टर्म्स ऑफ सेकंड लिख दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप 2 वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट हर वेट के लिए 2 बार कर रहे हो ना, 2 बार रिपीट कर रहे हो रीडिंग को, जो है एक बार लिया फिर दोबारा फिर लिया, तो इसलिए जो है यहाँ पे एक
टाइम आ जाएगा 50 ग्राम के लिए, फिर दूसरा टाइम आएगा 50 ग्राम के लिए, ठीक है ना। उसके बाद इसी तरह से फिर एक टाइम आएगा 100 ग्राम के लिए, फिर एक और टाइम आएगा 100 ग्राम के लिए। इसी तरह से लाइक वाइज फॉर 150 ग्राम देयर विल बी 1 टी एंड देन अनदर टी इन सेकेंड्स। और N2 इसी तरह से N2 की 2 वैल्यू होंगी, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट 2 बार कर रहे हो पर्टिकुलर सिंगल वेट के लिए, ठीक है। तो N2 की जो है यहाँ पे इसी तरह से 2 वैल्यू आ जाएंगी, एक यहाँ आ जाएगी, एक यहाँ आ जाएगी। इसी तरह से फिर 100 ग्राम के लिए 1 वैल्यू ऑफ N2 विल बी हेयर, अनदर विल बी हेयर। इसी तरह से इन द सेम वे 1 वैल्यू ऑफ N2 फॉर द 150 ग्राम वेट विल बी हेयर एंड अनदर वैल्यू फॉर 150 ग्राम वेट फॉर ऑफ N2 विल बी ओवर हियर, ओके। नाउ अब इन दोनों N2 की वैल्यूज का यहाँ मीन निकाल देंगे इस कॉलम में, जहाँ मैं पेन ये इस तरह से घुमा रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ इस जगह पे आपका मीन आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से फिर इन दोनों N2 वैल्यूज का यहाँ मीन आ जाएगा, फिर इसी तरह से इन दोनों N2 की वैल्यूज का यहाँ मीन आ जाएगा, ओके। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द फ्लाईव्हील। तो हाउ दैट कैन बी डिटरमिन्ड by using the formula omega equals to 4 pi n2 upon t, okay। you know the value of pi n2 यहाँ आप निकाल चुके हो, जो मीन वैल्यू आपने निकाली है ना करेस्पॉन्डिंग टू ईच एंड एवरी वेट, वो मीन वैल्यू आप यहाँ इस फार्मूले में यूज करोगे। तो ये N2 यहाँ पुट कर देंगे, टी आप यहाँ निकाल चुके हो, ठीक है। तो ये टी 2 बार आएगा, जैसे N2 का मीन ले रहे हैं ना, उसी तरह टी का भी मीन लेंगे। एक टी यहाँ आएगा इन टर्म्स ऑफ सेकंड, एक टी यहाँ आएगा इन टर्म्स ऑफ सेकंड। इन दोनों टी का हम यहाँ मीन निकाल कर रख देंगे। इसी तरह से एक टी यहाँ आएगा 100 ग्राम के लिए, एक दूसरा टी यहाँ आएगा 100 ग्राम के लिए, इन दोनों का मीन लेके यहाँ रख देंगे। फिर इसी तरह से एक टी यहाँ आएगा 150 ग्राम के लिए, एक टी यहाँ आएगा 150 ग्राम के लिए, इन दोनों का मीन लेके यहाँ पर रख देंगे हम जो, ओके। तो इस तरह से टी की हमारे पास 3 वैल्यूज हो जाएंगी मीन वैल्यू। और इसी तरह से इन द सेम वे वी विल हैव 3 वैल्यूज ऑफ N2, we will have the 3 mean values of N2, one is here, another is here, third one is here, okay। By using the value of N2 and T in this formula omega equals to 4 pi N2 upon T, you can calculate the angular velocity of the flywheel in terms of radian per second. So you will have one value of omega over here for 50 gram weight, you will have another value of omega over here for 100 gram weight, you will have one other value of omega over here for 150 gram weight. Now you have to calculate the value of moment of inertia which is denoted by I, ठीक है। तो I को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे हम, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। थोड़ा सा और पास लाओ, ये वाला फार्मूला देखो यहाँ लिखा हुआ है, आप अपने एक्सपेरिमेंट मैनुअल में देख सकते हो। एक्सपेरिमेंट मैनुअल आप जो है डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स की वेब पेज से डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ सारे मैनुअल्स डाल दिए गए हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला है आपका I इक्वल्स टू m ब्रैकेट में 2gh अपॉन ओमेगा स्क्वायर, फिर ब्रैकेट क्लोज माइनस आर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज अपॉन 1 प्लस n1 अपॉन n2। देखो m की वैल्यू आपको पता है पर्टिकुलर वेट के लिए, तो m की वैल्यू 50 ग्राम के लिए अगर बना आप कैलकुलेट कर रहे हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, तो यहाँ m की जगह 50 आ जाएगा 2। देन g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी आप यूज कर सकते हो। h आप यहाँ कैलकुलेट कर चुके हो फॉर एवरी वेट, यहाँ इस कॉलम में h कैलकुलेट कर चुके हो, तो h की वैल्यू रख देंगे। तो h की वैल्यू जो 50 ग्राम के लिए होगी वो यहाँ रखी जाएगी, क्योंकि हम 50 ग्राम के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहे हैं। फिर ओमेगा यहाँ आप कैलकुलेट कर चुके हो, तो ओमेगा की वैल्यू जो 50 ग्राम के लिए आएगी वो यहाँ रखी जाएगी, ओके। माइनस आर स्क्वायर, आर इस टेबल में आप निकाल लोगे। दिस इज दी डायमीटर ऑफ द एक्सल ऑफ द फ्लाईव्हील, ठीक है, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको शो किया था। पहले डायमीटर निकालेंगे और उसी से वहाँ से रेडियस निकाल लेंगे बाय यूजिंग द वर्नियर कैलिपर। और n1 आपके पास फिक्स है जिसकी वैल्यू 12 है, n2 आपका यहाँ जो मीन वैल्यू आ रही है, तो जो मीन वैल्यू 50 ग्राम के लिए N2 की आई है, मीन वैल्यू 50 ग्राम के लिए N2 की आई है, वो N2 की वैल्यू यहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से आपका जो है फ्लाईव्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम मीटर स्क्वायर फॉर द 50 ग्राम वेट कैलकुलेट हो जाएगा। In the same sense, similarly, you can calculate the value of moment of inertia for 100 gram weight, then for 150 gram weight. 100 ग्राम के लिए m की वैल्यू 100 ग्राम आ जाएगी, g की वैल्यू सेम रहेगी, h की वैल्यू यहाँ से उठा लेंगे 100 ग्राम के करस्पॉन्डिंग जो भी होगी, ओमेगा की वैल्यू यहाँ से उठा लेंगे टेबल से, इस कॉलम से जो है 100 ग्राम के करस्पॉन्डिंग। r की वैल्यू आपकी फिक्स रहेगी, n1 की वैल्यू फिक्स है दैट इज 12, n2 की वैल्यू फिर डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है ना। 100 ग्राम के केस में N2 की जो मीन वैल्यू होगी वो इस कॉलम से यहाँ से उठाएंगे, जहाँ मेरा अभी पेन है वो उठा के पुट कर देंगे, तो आपका 100 ग्राम के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू किलोग्राम मीटर स्क्वायर की टर्म में आ जाएगी। इसी तरह से 150 ग्राम के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्लाईव्हील। तो नाउ you people have 3 values of moment of inertia, one for 50 gram, another one for 100 gram, and the third one for 150 gram. So you people have 3 values of moment of inertia
फॉर दी फ्लाई व्हील। ओके, तो नाउ यू विल टेक द मीन ऑफ ऑल दीज वैल्यूज। ठीक है, ये जो 3 वैल्यू आई है 50 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम के लिए, इन तीनों का अगर आप मीन ले लेंगे तो यहाँ पे आपको एक अल्टीमेट फाइनल वैल्यू मिल जाएगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। ओके, दैट शुड कम आउट टू बी व्हेन यू विल डू द कैलकुलेशंस। ओके, दैट शुड कम आउट टू बी 3.29 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻² किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो इसके आसपास ये वैल्यू आनी चाहिए आपकी। ओके, तो व्हेन यू विल फिजिकली परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, the value can deviate from this value but not very much, little bit variation are allowed। ओके, तो 3.29 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻² किलोग्राम मीटर स्क्वायर जो है ये तो इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है। जो फ्लाई व्हील हमारी लैब में लगा हुआ है उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की स्टैंडर्ड वैल्यू 3.29 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻² किलोग्राम मीटर स्क्वायर है। आप कैलकुलेट करोगे थोड़ा बहुत वेरिएशन हो जाएगा, हो सकता है। ओके, इन दिस वे दिस होल एक्सपेरिमेंट कैन बी कैलकुलेटेड। परसेंटेज एरर मैंने बता ही रखा है सभी लोगों को, क्या होता है, मॉड लगाया, स्टैंडर्ड माइनस ऑब्जर्व, मॉड यहाँ लगा दिया अपॉन स्टैंडर्ड और मल्टीप्लाइड बाई 100%। ओके, इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन द एक्सपेरिमेंट इन द पैरामीटर विच यू हैव डिटरमिन्ड बाय परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट। ओके, तो हाउ मच you are deviating from the standard value, that can be told by the percentage error। okay, so these are the precautions, you can write down these precautions by seeing your experimental manual। so in this way the whole experiment can be performed, and for the least count of vernier caliper I will make another video, I will record another video and I will upload to all of you, don't worry for that। you have to determine the diameter of the axle of the flywheel। ओके, एक्सेल में भी आपको दिखाऊंगा कहाँ है एक्सेल। ठीक है ना, तो कैसे आपको डायमीटर लेना है, वर्नियर कैलिपर्स को यूज करके हम डायमीटर कैलकुलेट करेंगे फ्लाईव्हील के एक्सेल का। तो रीडिंग अलोंग एनी डायमीटर। ओके, रीडिंग अलोंग परपेंडिकुलर डायमीटर डायरेक्शन। ठीक है, तो हम जो हैं वो अपने हिसाब से जो है अकॉर्डिंग टू अस, ठीक है, हम वर्नियर कैलिपर्स की एक्सेल के ऊपर, जब एक्सेल के ऊपर रखेंगे वर्नियर कैलिपर्स को, तो उसकी इस तरह से जो है सिचुएशन को सेट कर लेंगे कि एक डायरेक्शन जो है वो दूसरी डायरेक्शन के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए। ओके, तो यहाँ पे हम जो 3 वैल्यू निकाल देंगे, यहाँ पे 3 वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और उसके बाद में इन दोनों का मीन ले लेंगे और मीन के बाद में फिर यहाँ एक फिर तो ये तो डायमीटर आएगा। ओके, इस डायमीटर से रेडियस की वैल्यू आ जाएंगी, तो जब 3 डायमीटर की आएंगी तो 3 रेडियस की आएंगी। इन तीनों रेडियस का मीन लेके यहाँ फाइनल वैल्यू ऑफ रेडियस लिख दी जाएगी। ओके, इस कॉलम जहाँ मेरी फिंगर है। ओके, ना अब तरह से एक बार फ्लाई व्हील को फंसाया यहाँ पे, ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स को एक बार आपने इस तरह से फंसा दिया, तो आपने दूसरी बार जो है इसको इस तरह से फंसा दिया। तो अब ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो गई ना, मेरी फिंगर एक ही है। आप देखो मेरी फिंगर और वर्नियर कैलिपर्स की डायरेक्शन को मिलाइए आप जो है, ये मेरी फिंगर जो वर्टिकल रखी हुई है, ठीक है ना, इस पर इस तरह से वर्टिकली मैंने रखी हुई है, ये तो मेरी फिंगर हो गई और ये वर्नियर कैलिपर्स की डायरेक्शन, दिस बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, या आप इस तरह से कर दीजिए इसको। ठीक है, तो ये आपकी ये मेरी फिंगर हो गई, ये इस तरह से मेरी फिंगर हो गई, ठीक है ना, और ये आपका वर्नियर कैलिपर्स है। तो देखो ये वर्नियर कैलिपर्स हो गया और ये मेरी फिंगर रखी हुई है, दोनों बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आपको इस तरह से मतलब जो है आपको जो है 1 2 3 टाइम्स आपको इस तरह से रीडिंग लेनी है, फिर 1 2 3 बार आपको इस तरह से रीडिंग लेनी है। तो इन दोनों तरीके से जो है आपकी डायमीटर की 3 वैल्यूज आ जाएंगी, 3 अलोंग द डायरेक्शन और 3 इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो उन सबका मीन ले लेंगे हम, उससे वहाँ से रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे, तो रेडियस की भी 3 वैल्यू आएंगी, उन रेडियस का मीन ले लेंगे तो रेडियस की फाइनल वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से आप इस एक्सेल की, जिसको मैं अभी टच कर रहा हूँ यहाँ पे फिंगर से, इस एक्सेल की जो है वो आप रेडियस फाइंड आउट कर सकते हो, जिसका यूज जो होगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने के लिए होगा और हाइट कैलकुलेट करने के लिए होगा। ऑब्जर्वेशन टेबल सेकंड में आप देख सकते हो, वहाँ एक हाइट वाला कॉलम है और फिर एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले फार्मूले में भी आर का इस्तेमाल हो रहा है। ओके, थैंक यू।